कभी भी कोई आपसे पूछता है कि आरसीज में कौन सा जॉनरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैट का कौन सा जॉनरा सबसे फेवरेट होता है, आप क्या बोलते हो? फिलोसफी, राइट? हम भी यही बोलते हैं। बट देन द थिंग इज देयर आर सर्टेन मिथ्स, मिसकंसेप्शंस। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अभी चूंकि कुछ ही दिन बच गए हैं कैट के लिए, लेट्स काइंड ऑफ गो द एक्स्ट्रा माइल एंड ट्राई टू डिग आउट सम डेटा। ओके, ऐसा कोई बड़ा डेटा नहीं है, मतलब आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। 2017 से लेके 2024 तक व्हाट डिड वी डू? वी जस्ट टुक ऑल द क्वेश्चंस, ओके, एंड वी जस्ट went into those. We tried to compile the data and come up with the statistical credibility कि कौन सा genre का क्या importance है. But before I start with this, why is it important? Why are we even doing it? इतना भी अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, बट क्यों कर रहे हैं हम? The simple reason is that now with just a few days left, you need to do relevant things. So what I'm trying to say here is, देखो CAT 2026 वाले article reading पे जा सकते हैं based on this data that I'm going to show you, right? And CAT 2025 वाले in these last few days can go to relevant RCs of the specific genre, pick them from wherever they can and solve them. You got it? So let's start. For those of you who don't know me, hi, I'm Shabana Shahab and I'm going to take you on this 10-minute short joyride, which is going to give you a lot of data related to whatever has been coming in CAT VRC section from 2017 to 2023. So chaliye mere saath. Now, this is the breakdown that I was talking about. हाँ, अब ये हमारा RC है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट? फिलॉसफी, दैट डजंट स्टैंड एट नंबर 1 पोजिशन। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था, हर कोई के दिमाग में ये होता है ह्यूमैनिटीज, यू नो, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. दिस इज व्हाट पीपल रेड एंड देन पीपल आर सो कंफर्टेबल विद देयर इकोनॉमिक्स. कई लोगों से सुना है मैंने, मैं तो इकोनॉमिक्स का ही पढ़ता हूँ. मैनी पीपल टेल मी, मैं तो ह्यूमैनिटीज का हूँ तो मैं तो साइकोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ. अब भाई ये दिख रहा है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट वन द रेस. इफ यू लुक एट दिस चार्ट ओवर हियर, इसमें क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 21 percentage is 23.33. That's the weightage that we are giving today to science and technology का articles, science and technology के RCs. So हमने 2017 से 2024 के RCs सारे छान मारे, सारे देखे हमने, and these many we found from this genre. Second is philosophy. But I'll tell you something here. Philosophy I don't separate from psychology. Humanities का एक ही रखा करो आप भी. So whenever you come across any RC passage connected with psychology, philosophy, sociology, philosophical sociology, sociological philosophy, or any blah 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 something, okay, just go for it. ठीक है? Because even this has good weightage, 15.56. 14 passages अभी तक आए हैं इसके, और अगर आप उसको ऐड कर दो philosophy and psychology के, तो that makes it 18. Right? Business and economics. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के 11 हैं, हिस्ट्री के आपके 11 हैं, आर्ट एंड कल्चर के 10, कल्चर एंड सोसाइटी के 10. अगेन कल्चर एंड सोसाइटी आप साइकोलॉजी से कनेक्ट कर लो, एनवायरनमेंट को सेपरेट रखो, दैट इज 9. सो एक्चुअली अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो फिलोसफी, कल्चर एंड सोसाइटी एंड साइकोलॉजी मिला लो आप, तो दैट इज 14 and 10, 24 and then 4, 28, राइट? तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है, बट फिलोसफी अकेले, only philosophy as dry philosophy doesn't make much sense. अब before I take you over to the next slide, एक बहुत ही important चीज, going forward, if you're going to dig out some RC passages from these genre, make sure you read on these topics. मतलब read in the sense RC solve करो. Science and technology में anything related to AI, anything related to how AI can affect society, anything related to how AI can help a country in achieving its goals, or help a human being, or help in the some process, okay, that is important. Okay, philosophy mein you can do a little bit of reading on these common philosophers, I mean important philosophers such as Socrates, Chomsky, Aristotle, Plato, ये सब जो prominent names हैं उन पे आप थोड़ी सी कर लो, उनकी philosophies देख लो. रेने डेस्कार्टे का आप dualism देख लेना, ठीक है? तो ये कुछ topics हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Business and economics में read anything that you can about GDP. You can
go into the economics part and actually do a little bit of free reading on demand, supply and all, ठीक है, how a free economy works. And when you're doing this reading on business and economics, you can also delve into things like capitalism, Marxism, socialism, ये 3 काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है. कम्युनिज्म भी पे भी पढ़ सकते हो आप, फाइन. तो ये यहाँ हो गया. हिस्ट्री में रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, द ग्रेट माइग्रेशन, द डार्क एजेस, मिडीवल इरा, प्रिमिटिव सोसाइटी, ये सब जो होते हैं ना आपके इरा वाइज जो आपकी हिस्ट्री हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रीडिंग अबाउट एम्परर्स एंड डेट्स एंड ऑल, प्लीज रीड अबाउट दोज इराज, फाइन. देन आर्ट एंड कल्चर में तो जनरली वो रेनेसांस वगैरह इसमें भी आ जाता है. एंड मोर ओवर यू कैन डू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बुक रिव्यू वाला थिंग, सो उस पर भी RCs आपको मिल जाएंगे बहुत सारे. कल्चर एंड सोसाइटी एज आई सेड ओवरलैप करता है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से. एनवायरनमेंट, एनीथिंग टू डू विद ग्लोबल वार्मिंग. अब वो ग्लोबल वार्मिंग में companies are actually putting the blame on the consumers for plastic pollution, or it can be global warming में carbon footprint, it can be global warming से related आपका ozone depletion in the atmosphere, it can be something like permafrost melting, it can be Arctic में कोई problem, कोई crisis, it can be the ocean का level rising and aquatic animals suffering, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So this is environment, ecosystem, ये आप ले लेना. I hope this is very clear, guys. I'm repeating my point for CAT 2026. You really need to get started with your reading on these topics. So हमारे पास हमारे dashboard पे there is one particular module which has about 250 reading passages, articles. You can go there and you can get started with those. Fine, and make sure you read according to this importance, this data that we have given you. Big data, I love to call it. और CAT 25 वालों, इन टॉपिक्स पे पैसेजेस ढूंढना शुरू कर दो. हर्ड मी राइट? ओके. अभी ये अपना हो गया फ्री कैट रिविजन टूल. इस पे आप चले जाओ CAT 25 वालों, एंड वी आर गिविंग आउट सम गुड पैसेजेस ऑन दिस रिविजन टूल पे. हमने कंपाइलेशन किया है. सो वट एवर आई जस्ट स्पोक अबाउट द RCs एंड ऑल, यू नो, किसका कितना वेटेज है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा मटीरियल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है. और ये आप देख रहे हो, यस दिस इज ट्रू. इट्स अवेलेबल एट ₹9. सो अगर आपने एनरोल नहीं भी किया है, यू कैन लेट मी नो. बहुत सारों का एक साथ, लाइक मेरे सारे स्टूडेंट्स का मिला के मैं कर दूंगी इसको. आप बस पढ़ लो, आप बस कैट क्रैक कर लो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. ओके, नाउ वी कम टू दिस ऑड वन आउट. बहुत ही मज़ेदार से ये टॉपिक है. मज़ेदार इन द सेंस, थोड़ा सार्कास्टिक सेंस में बोल रही हूँ मैं. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे कि मैम इसको ना क्या मैं सैक्रिफिशियल टॉपिक इसको बना सकता हूँ. मैंने कहा बिल्कुल, उसको सैक्रिफाइस ही कर दो, मार डालो उसको. आई डोंट नो व्हाई दे गिव दिस, बट ठीक है, देते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है. तो ऑड वन आउट जब से आ रहा है हमारे कैट में, तब से हमने डेटा उठाया है. एंड यू कैन सी अगेन यहाँ पे जॉनरा दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है. साइकोलॉजी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी. बट यहाँ पे एक चीज आप देखो कि साइकोलॉजी एंड फिलोसफी आर सपोज टू पुट टुगेदर. सो 13 उसको मैं दे रही हूँ, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. एनीवे, देयर इज नो गारंटी एज सच कि अभी तक यही आया है, साइकोलॉजी पे ज्यादा आया है तो ऑड वन आउट में वही आएगा, ऐसा कोई नहीं है. यू गेट 2 क्वेश्चंस ऑड वन आउट के, मोस्टली टीटा होते हैं, ठीक है. बट दैट कैन बी फ्रॉम एनी जॉनरा. सो पता है, ये दिखा तो रहे हैं हम आपको डेटा, फाइन, बट देयर इज नो रिटन गारंटी ना कि इसी हिसाब से आएगा. अब जैसे मैंने आपको पैसेजेस दिखाया था, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई फॉरगॉट टू मेंशन यू दैट एवरी ईयर दे गिव यू 1 पैसेज ऑन एनिमल्स. वो एक डिस्क्रिप्टिव सा पैसेज होता है. एक कोई एंगल होगा, फाइन एंगल कनेक्टेड होगा. जैसे इन कैट 2024 दे हैड गिवन समथिंग ऑन बैंडिकूट्स, and the bandicoots were on the verge of extinction, and then how they were revived. That was the angle. So every year they give you 1 passage on animals, but we don't know which sitting it's going to be. So coming back to this, I'm telling you, odd one out हो, PJ हो, short summary हो, data सब अपनी जगह है. But there is no hard and fast rule that is going to be in play this year also, है ना. तो आपको करना क्या होता है, basically you have to keep improving your reading. And in case you think that in these last 30 days you can put your reading on the shelf, on the back seat, no you cannot. Because that is something that's going to keep your brain oiled till the last day. कई बच्चों से मैंने ये सुना है कि नहीं, अभी तो ना मेरा लास्ट में मैं पैनिक हो रहा हूँ और मुझे ना सिलेबस कंप्लीट करना है, so I don't get time for reading. You're mistaken. You can reduce your RC exercise, your practice as such, but please do not compromise on the daily reading thing. Let it go on
till November 29th, that is the day before CAT. तो ये देख लिया आपने odd one out का. Okay, para completion. This is one topic in which there is always this tug of war between blank 2 and blank 3. Fill in the blanks भी बोलते हैं इसको. They give you one sentence और उस sentence को insert करना होता है किसी एक blank में. So generally blank 2 and blank 3 में लोग फंस जाते हैं वहां पर, ठीक है. बट पैरा कंप्लीशन में अगर मैं आपको दिखाती हूँ ये, और ये 2 साल से आ रहा है, फाइन. अब आप यहाँ देख लो, जॉनरा देखो इसका, इसलिए आपको ये नंबर्स यहाँ पे कम दिखेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आरसी की तरह, राइट. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड सोसाइटी, हिस्ट्री, फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी. टोटल 21 क्वेश्चंस वी हैव गॉट सो फार, ठीक है. सो सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बाय वो आपको ना कोई टाइप का भी पैसेज मिले, whether it's related to chemistry, biology, physics. यार फिजिक्स से मुझे याद आया, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल जब आता है तो उसमें तो ना मतलब मुझे बिल्कुल वो हो जाता है कि भाई ये क्या दे दिया इन्होंने, एंड माय ब्रेन एक्चुअली जस्ट जोन्स आउट. तो ये आपका पैरा कंप्लीशन का डेटा है. पैरा जंबल, पैरा जंबल्स में अगेन इट्स गोइंग टू बी टीटा इफ इट मेक्स अ कम बैक. पैरा जंबल्स के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं. एवरी ईयर दे हैड गिवन थ्री क्वेश्चंस तो हुए ही हैं, हाँ, जहां तक मुझे याद है. सो यहाँ आप देख लो नंबर्स. अगेन यू कैन सी दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आपका कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. पता है यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी मैं, इतना ज्यादा ना डोंट ट्राई टू काइंड ऑफ सेग्रीगेट एंड मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट की नहीं. ये ना एक पैसेज आपको सामने मिला, इज इट आर्ट्स एंड कल्चर और इज इट कल्चर एंड सोसाइटी? कैसे डिसाइड करूं मैं? मैम ने दे तो दिया डेटा बट आई एम लाइक टोटली कंफ्यूज्ड. नो, प्लीज डू नॉट बी. एज आई सेड अर्लियर, द बाउंड्री बिटवीन दीज जॉनरा is porous. There's like, you know, often an overlap. So basically यहाँ पे है, if you are reading science and technology, at some point it can be connected with philosophy. Okay, it can be scientific philosophy, or at some point it can be scientific sociology, right? So there is always that overlap. So please do not focus too much on those boundaries. You just go ahead with your good reading. ये तो हमने डेटा आपको compile करके दिया just for like that clarity. हमेशा मतलब किसी से भी पूछो ना कि अच्छा क्या है, तो सब बताते थे लाइक पिछले 1 साल का 2 साल का लेकर के. हमने बोला चलो once and for all let's get this over with. और ये वाला जो है आपका डेटा, दिस विल बी रेलेवेंट इवन फॉर 26-27. 1-2 साल तक तो और रेलेवेंस इसका रहेगा ही. सो गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड. अगर आप 26 के हो तो 26 के हो बोले तो उम्र नहीं बोल रही हूं मैं, कैट 26. पैरा समरी. नाउ पैरा समरी इज समथिंग दैट इज डीपली कनेक्टेड टू आरसी. हाउ? Somebody who is good in RC will definitely, almost undoubtedly be good in para summary. Why? Because he knows the flow of the paragraph. And para summary में ना like उसी तरह का option बना होता है. So अगर आपने मेरे साथ practice करी है for main idea, for primary purpose of the passage, and for taking out the summary and all, तो ये short summary के जो 2-3 questions आते हैं, these will be very, very doable for you. Now if you take a look at this, again, you see this? Science and technology. Almost always at the top. Culture, society, business and economics, philosophy. अच्छा, एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताऊंगी मैं शॉर्ट समरी को लेके. शॉर्ट समरी में whenever they have given you science and technology का, okay, I have noticed somehow the paragraphs have been nice and cute. अब वो coincidentally हुआ होगा, I'm not saying कि ऐसा कोई उनका purpose वो रहता है, but science and technology के short paragraphs जो आएंगे, they will be like short and cute. On the other hand, if you get philosophy, the paragraph is going to be slightly longer. और एक चीज और नोटिस की है मैंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो आपके ऑप्शंस बने होते हैं उनमें आपको जनरली रहता है ऐसा, 2 ऑप्शंस सिमिलर, 2 ऑप्शंस सिमिलर, ऐसा वाला. और फिलोसफी वाले जो होते हैं उसमें मोर ऑफन देन नॉट आई हैव सीन दैट ऑल द ऑप्शंस स्टार्ट विद सम डिफरेंट वर्ड्स. ये बस एक पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया है. इट कैन चेंज दिस ईयर, ओके, नोबडी कैन टेल. ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, ये है आपका सारा डेटा दिया हुआ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट. तो भाई जो भी हो, ये 6-7 कितने हैं यहाँ, 1 2 3 3 6 7 8 जॉनरा को आप ले लो. इन पे आरसीज डिग आउट करना शुरू करो. गो टू अवर डैशबोर्ड. रीडिंग वाला जो हमारा कंपाइलेशन है 250 का, उसमें से मे बी यू कैन टेक आउट एंड यू कैन जस्ट डू अ क्विक रीडिंग. अभी उतना टाइम तो है नहीं कि आप डिटेल रीडिंग कर सकते हो. कैट 26 वाले डिटेल आर्टिकल रीडिंग कर सकते हैं वहां से. और कैट 25 वालों, एज आई सेड, गो टू दैट रिविजन टूल. And yes, one very important thing before I forget, right? अभी जितना कुछ भी मैंने समझाया,
all those things are being included in this. 300 challenging VRC questions आपका countdown चल रहा है YouTube पे. Okay, it's done thrice a week. The sessions are about 90 minutes long. और इसमें हर तरह का जॉनरा इंक्लूड कर रही हूं मैं, VA का, RC का, हर तरह का, राइट. मोरओवर वी आर ट्राइंग टू क्या, हर सेशन में मैंने किया है, आई हैव मिरर्ड CAT PYQs. सो दिस कंपाइलेशन इज ऑलमोस्ट लाइक अ मॉक से ज्यादा अच्छा क्या वर्ड यूज करूं, मॉडल टेस्ट. ठीक है, सो ये आप देख लेना. क्रिटिकल रीजनिंग का आपका यहाँ पे मैंने कुछ सेशंस करवाए थे. मोरओवर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर कमिंग अप इन दिस सीरीज बिकॉज इट्स द लास्ट मंथ. बहुत सारी प्रैक्टिस देने वाली हूँ मैं. और ये है आपका 100 पैसेजेस विथ मी, ये तो मेरा ही नाम है, हाँ, 100 पैसेजेस विथ मी. इसको आप देख लेना यूट्यूब पे. अगेन दिस प्लेलिस्ट इज देयर. तो इसमें क्या करना है आपको, दिस इज फॉर लाइक दिस इज टू गेट योर बेसिक्स क्लियर. लेट्स से यू आर लाइक काइंड ऑफ गेटिंग दैट ब्रेन फॉग. समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं तो ऑर्गेनाइज रीडिंग कर रहा था, अब अचानक ना मुझे पैसेज मैपिंग में प्रॉब्लम हो रही है. लाइक दिस मॉर्निंग आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, पैसेज मैपिंग नहीं हो पा रहा अब मेरे से. एंड आई नो दैट स्टूडेंट, ही हैड बीन डूइंग वेल अर्लियर. तो भाई दैट इज ब्रेन फॉग. सो आई सजेस्टेड इट टू हिम, गो बैक टू दैट सीरीज, यू नीड टू रिविजिट द बेसिक्स. जाके वहां पे 10-12 पैसेजेस देख लो एक बार. अगेन इट विल बी लाइक वेरी क्लियर. One last thing. In this, I teach you how to do a little bit of organized reading. That is called smart reading or selective reading, which is a combination of skim, skip, scan. Okay? Because I really and truly do not believe in reading word for word every passage, because then only the good students, only the cream of the crop will crack CAT. What about the other students who are not very good in reading? उनका क्या होगा? How will they manage in that limited amount of time? इसलिए आप जाके देखो ये वाला series, you will get a lot of insights and a new approach to RCs, new approach to solving RCs that actually works. I hope I have made everything clear, guys. Thank you so much, and I'll wait for you in the next session of this particular countdown series. चलती हूँ, दुआओं में याद रखना. Bye bye.